Some careers give you a salary, some careers give you status, but there are only few careers that give you the privilege to serve the nation, and that too leading from the front. Okay. Welcome to Revision Ka Adda. This is Vaishali, and today in this class we will be discussing about the defense job. We will see into the problems that the defense aspirants face to figure out which exam they should go for, when they are confused, why they are confused, what is the syllabus, how they have to prepare for the exams, what should be the strategy, and what are the problems that they have in their personality जो कहीं ना कहीं आगे जाके उनको एक बैरियर का काम करेगी. So welcome to the class. Let's begin. Which exam you should prepare for, what is the strategy of preparation, what is the revision strategy, which are the books that you should follow, how do toppers revise, and how you can balance this preparation with your college studies. See, there is a full roadmap on how you have to make your concept strong with a weekly, monthly revision. Then you have to do the question practice and then keep revising the concepts again and again. So first you have to make a roadmap, then concepts have to be covered, then practice, revision, because only revision helps in the retention, then analysis, and then maintain, mindset and health. So if you stay disciplined, you'll stay fit, and automatically you'll stay positive, and then you'll succeed in your dreams. So basically, if you are interested in any defense job, so there are two exams, CDS, FCAT. So through CDS, you basically enter into IMA, which is the Indian Military Academy, then INA, Indian Naval Academy, and Air Force Academy. So here you have to focus on three subjects: English, which is of 100 marks, general knowledge again 100 marks, mathematics 100 marks. So यहाँ पे ये जो तीन subjects है, इन पे अपनी command अच्छी करनी है. Simply having an idea doesn't help. You have to figure out the important concepts and how you have to manage, revise and retain the concept. अगर Air Force की बात करते हैं तो general awareness, verbal ability, numerical ability, reasoning and military aptitude. तो इसके और इसके syllabus में थोड़ा सा difference है. So you have to majorly focus on mathematics and reasoning part as well. Importance क्या है अगर दोनों को cumulatively देखा जाए? English is a scoring subject in both the exams. एक के लिए पढ़ रहे हो, same content रहता है, उसी का ही practice करना है, and you will be helped in both the exam. Then most important, current affairs, static GK plays a huge role. Current affairs, because after these, if you clear the written exam, then there will be SSB's interviews. So for that purpose, you should be knowing the current affairs, what is going on at national and international level. देन स्टैटिक जीके, उसको स्टैटिक जीके के साथ लिंक करके पढ़ो क्योंकि रिटन एग्जाम में उससे भी क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन मैथमेटिक्स इन सीडीएस रिक्वायर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. तो जो एफकेट वाला आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, दैट इज बिट सिंपलर इन कंपैरिजन टू द सीडीएस. तो जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ रखा है 11th-12th में, सीडीएस में देयर विल बी अ डिफरेंट पेपर, तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें फोकस करना पड़ेगा. अब रही इंग्लिश की बात, क्योंकि इंग्लिश दोनों में है तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है. तो वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अगर डेली बेसिस पे बात की जाए तो आपको एक एडिटोरियल रोज पढ़ना है इन इंडियन एक्सप्रेस और थ्रू द हिंदू, जो भी आपको इजीली एक्सप्लेन, जो उसमें चीजें दी गई इजीली समझ आ रही है. इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद अ सिंपलर लैंग्वेज, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंडियन एक्सप्रेस, एंड देन यू कैन मूव टू द हिंदू, क्योंकि वहां पे जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो इंग्लिश का वोकैब वहां पे यूज हुआ है, तो चांसेस आर हायर कि उसमें से आपको चीजें जो है क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाती है. देन 10 to 15 वोकैबुलरी वर्ड्स, क्योंकि हर बार उसमें नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं. तो 10 से 12 शब्द अगर रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस. जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है. और यूपीएससी सीडीएस कंडक्ट करवाती है, तो उसमें आपका साइंस, अगेन इन रिलेशन टू दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस का इंपॉर्टेंस बाकी एग्जाम्स में भी बढ़ रहा है जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो यहाँ पे भी इसको अच्छा वेटेज मिलेगा.
फिर इन सबको पढ़ने के लिए क्या कौन सी किताब उठाई जाए, तो सबसे पहले एनसीईआरटीज के जो बेसिक चैप्टर्स है, जो बेसिक बुक्स है, उसको पढ़ा जाए, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाली जाए। वो कैसे होगी, क्वेश्चन पेपर्स देखो, पीवाईक्यूज देखो, उससे एक आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर को, कौन सी यूनिट को, कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो उस हिसाब से एक राउंड या 2 राउंड रिवीजन के थ्रू हमको एनसीईआरटीज को फॉलो करना है। अब बात आती है मैथमेटिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, तो जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, सीडीएस में जो अलग से पेपर होगा उसमें थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक्स आपको दोनों के लिए ही पढ़ने हैं। दोनों का करने के बाद में 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि सीडीएस का मैथ्स का लेवल हाई होता है। तो अगर वो वाला लेवल आप कर पा रहे हो तो एफकेट में इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटरव्यू में आपको करंट ओरिएंटेड चीज ही पूछी जाती है। तो जितना आप डेली बेसिस पे उस पर होल्ड रखोगे, उतना ही रिटर्न एग्जाम में और उतना ही आपको इंटरव्यू के टाइम में हेल्प करेगा। तो डेली क्या 15 मिनट, जैसा मैंने बोला, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लो जिसकी लैंग्वेज आपको इनिशियली समझ आ रही है, जैसे जैसे आपको थोड़ा इजी लगने लगता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो लैंग्वेज के साथ में, देन शिफ्ट टू अ हायर वर्जन, ठीक है। तो वहां से जाके डेली पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालो, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। इंग्लिश के पेपर में जो एसेज आते हैं वो भी थोड़े से आप डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं, आप एक बार में पढ़ के उससे 1 वर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी है। फिर आपने 15 मिनट, जैसे न्यूज, स्पेशली जो गवर्नमेंट का चैनल है, तो उस पर आप देखेंगे आपको सिर्फ काम की चीज मिलेगी, इधर उधर की कोई बात नहीं मिलेगी जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गिव योर 15-20 मिनट्स फॉर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, ये दोनों चीज आपकी उसी में कवर हो जाएगी जब आप न्यूज देखेंगे। फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात हो रही, क्यों, डिफेंस का एग्जाम है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, कौन सा नया एडवांसमेंट हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है, इंडिजिनस है, बाहर की MOU साइन हुआ है, दूसरे नेशन की हेल्प के साथ हुआ है, वो सारी चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। मिलिट्री ऑपरेशंस है, कौन से नेशन के साथ क्या हो रहा है, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, वो चीजें याद रखनी है। अवार्ड, स्पोर्ट्स, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज आई टोल्ड यू, बेसिक साइंस को पढ़ते पढ़ते साइंस टेक के साथ आपको इस पे कमांड रखनी है। फिर डिफेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, डिफेंस एक्विजिशंस, इन चीजों पे भी आपको कमांड अच्छी करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से अच्छा वेटेज जो होता है इन क्वेश्चंस का होता ही है। चांसेस आर हाई आपसे इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाए, क्योंकि उसी का बैकग्राउंड है। अब मेन चीज क्या है, जो एक गोल्डन रूल है, दैट इज 40% लर्निंग एंड 60% प्रैक्टिस। तो जितना जो पढ़ रहे हो, बाय द एंड ऑफ द डे ईदर यू प्रैक्टिस, इफ यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, यू आर डूइंग मैथ्स, और अगर आपने कोई याद करने वाली चीज है, देन डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, वो रिटेनमेंट में हेल्प करता है। एवरी वीक की बात की जाए तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, PYQ उसको करो, और एग्जाम से 2-3 महीने पहले स्टार्ट डूइंग 1 मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड, ठीक है। और जैसे जैसे और टाइम कम होता चला जाएगा तो यू कैन डू इट 2 टाइम्स इन अ डे और 3 टाइम्स इन अ डे, राइट। अब उसके बाद करना है एनालिसिस कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, नॉलेज की कमी की वजह से हुई है या कोई सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, ठीक है। इन चीजों को फिगर आउट करो। ये प्रॉब्लम को फिर जहां पे तुम लोगों ने जो भी तुम्हारा सोर्स ऑफ स्टडी है, खुद के नोट्स बनाए हैं, वहां पे उसको जॉट डाउन करो। ये चीज यहाँ पे गलती हुई है, इसका मतलब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है, जो मुझे याद नहीं आ रही है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो उसको बार बार देखने में आएगा, तो उसको रिटेन अच्छे से रहेगा। अब रिवीजन सिस्टम की जैसे बात हो रही है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतनी सारी चीजें होती हैं कि अगर 1 या 2 बार कोई चीज को पढ़ा गया है तो वो जरूरी नहीं है उस टाइम पे याद आ जाए। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा उसमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखोगे, वहां पे सही आंसर्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। रिवीजन में भी जनरली फॉलो दिस रूल 1, 3, 7, 15। तो जिस दिन पढ़ा है या तो उसी दिन शाम को रिवाइज कर लो या अगले दिन सुबह रिवाइज करो, 3 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, 15 डेज। तो इस तरीके का एक अपना शेड्यूल सेट करो कि जो भी टॉपिक पढ़ा है वो एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद जब आपने मॉक टेस्ट देने हैं या क्वेश्चंस करने हैं, उस टाइम पे भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो भी गलती करोगे तो उसमें फिगर आउट हो जाएगा कि मुझे लग रहा था कि ये याद है लेकिन फिर भी इससे गलत हो गया। तो वहां पे वो आपको फिल्टर करने में हेल्प करेगा कि कौन सी चीज पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है।
वीकली की बात करें तो जैसे इंग्लिश को जो है 1 घंटा डेली देना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कितने सारे टॉपिक्स है जो इसमें आ रहे हैं, तो सब पे 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरा एक अलग से सीडीएस में उसका एक अलग से पेपर होता है। जीएस का पेपर अलग होता है, इंग्लिश का पेपर अलग होता है और मैथ्स का पेपर अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक मिक्सचर होता है तो उसमें से आप अलग अलग करके कर सकते हो। तो इसीलिए कंपलसरी है इतना टाइम देना है मैथ्स के लिए फॉर 1.5 आवर, जीके करंट अफेयर्स के लिए भी उतना ही टाइम देना है, देन डेली बेसिस पे 1 घंटा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देना है। फिर जो शाम का टाइम बचता है या जो सुबह का जो टाइम जिसके लिए फेवरेबल है, उसमें जो चीज उस दिन पढ़ी है उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। ठीक है, फिर वीकेंड की जब बात आती है तो सैटरडे को गिव योर होल डे फॉर रिवीजन, और संडे को फिर जो है आप मॉक टेस्ट करो 2 घंटे का। इस तरीके से शिफ्ट्स में जैसे पेपर आएगा उसी तरीके से उसको रिपीट करने की कोशिश करो, और फिर उसको एनालाइज करो, कहाँ कौन सा टॉपिक आता था, एनालाइज करके पता चलेगा कहाँ पे गलती हुई है, ताकि नेक्स्ट जो एग्जाम दोगे तो उस टॉपिक में गलती होने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड थी। इसमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, गलतियों को फिगर आउट करना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, और उसी चीज को बार बार आपने कंसिस्टेंट रह के रिवाइज करना है। तो लास्ट टाइम जो होता है एग्जाम से पहले वाला टाइम होता है, तो उसमें फिर उतना स्ट्रेस और प्रेशर फील नहीं होता अगर आप पूरे जितना भी आपका 6-7 महीने का टाइम फ्रेम है उसमें कंसिस्टेंट रहे हैं। अब एक बार एग्जाम क्लियर होने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है एसएसबी प्रिपरेशन। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे वेट फॉर द रिजल्ट्स। अगर रिटर्न में हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आप जो थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में अगर आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, गलत ट्रेड्स डेवलप होंगे जो कहीं ना कहीं एसएसबी के टाइम पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो वहां पे क्या होता है, चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इंक्रीजेस। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, द डे वी डिसाइडेड कि हमको वो एग्जाम क्लियर करना है, हमको वो यूनिफॉर्म चाहिए, फ्रॉम दैट डे ओनली वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर पर्सनैलिटी, राइट। रिटर्न रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है, जिस दिन से पढ़ना शुरू किया है उसी दिन से आधा 1 घंटा निकालो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, क्योंकि ये चीज आपके हफ्ते 10 दिन में नहीं हो सकती। ये पूरी एक जर्नी है, तैयारी के साथ ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहां पे चेक की जाती है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ठीक है, अब इन क्वालिटीज में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू आर लीडिंग समबडी यू आर वर्किंग फॉर अ मेजर कॉज। तो ये सारी क्वालिटीज वहां पे बहुत मैटर करती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल, इफ यू कांट स्पीक प्रॉपरली, इफ यू कांट स्पीक कॉन्फिडेंटली, वो 10 दिन में 1 महीने में डेवलप नहीं हो सकती। इट कम्स बाय द रेगुलर एफर्ट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, दैट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, लाइक इफ यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ 10-50 पीपल, देन हाउ यू आर लीडिंग देम, हाउ यू आर गाइडिंग देम, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है डिसीजन मेकिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जिसमें एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना, एक किसी डिसीजन को लेने के लिए जो समय होता है वो बहुत कम होता है, तो आपको उस कम टाइम में ही एफिशिएंट डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो आप 10 दिन में नहीं डेवलप कर सकते, वो भी आपका प्रिपरेशन की जर्नी का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आता है टीम वर्क। टीम के साथ आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी में तो दे लाइक वर्किंग अलोन, दे डोंट लाइक वर्किंग विद अदर पीपल, दे डोंट लाइक वर्किंग इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज भी देखी जाती है। तो अगर आपने जिस चीज का सपना देखा है, अगर वो चीज को पाना है तो आपको उसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, डे 1 से करना पड़ेगा। तो अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, अब ये जितनी भी क्वालिटीज है, हाउ यू कैन डेवलप देम and how you can figure out whether you are having any of them or not, नहीं है तो डेवलप कैसे करना है, तो दैट we'll discuss in another class। आज हमारा मेन पर्पस था कि क्या कंटेंट है, सिलेबस क्या है, कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करना है। तो मेन पर्पस आज हमारा यही था। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दी OLQs, राइट। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव डिसाइडेड, देन दिस इज फॉर यू।
The uniform is not awarded, it is earned. It is earned through discipline when nobody is watching. It is earned through revision when others are scrolling. You have to figure out the right time. You have to figure out the right intensity. Right? If you want something in your life, that too this kind of job, which demands a lot, so you have to work on yourself through consistency when motivation disappears. कई बार ऐसा होता है 3-4 महीने लगातार पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा जरूर आता है जिसमें ऐसा लगता है अरे यार कोई फायदा नहीं है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, इतना सारा सिलेबस है, ठीक है, उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जब आपके पास कोई नहीं है गाइड करने वाला, ठीक है, तो फेलियर आपको सामने दिखाई देता है, आप इमेजिन करते हो, आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो. तो इफ यू वांट दिस, रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज मस्ट. प्रॉब्लम आ रही है, आपको ही नहीं आ रही, सबको आती है. जब हम इस तरीके की तैयारी करते हैं जिसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, उस समय अपने आप को डीमोटिवेट ना करके उस टाइम को निकाल के एंड देन यू हैव टू स्टार्ट ए फ्रेश. राइट? इफ योर ड्रीम इज टू बिकम एन ऑफिसर देन दिस जर्नी स्टार्ट्स टुडे. जिस दिन से सोचा है कि मुझे वहां जाना है, उसी समय से अपने आप पे काम करना शुरू कर दो. And if you really want to become a defense officer, and if you are watching this video, then you are lucky enough, you can come to us, we'll guide you how you should approach. बहुत confusion रहता है कि कौन सा एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या अप्रोच है, क्या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं. तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें वी आर गोइंग टू हेल्प यू. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एंड हाउ यू कैन डेवलप देम विद टाइम, हाउ यू कैन लिंक द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ योर्स विद द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव नॉलेज. तो इस चीज पे हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे. सो यू कैन join in the next video on our channel Revision Ka Adda. Thank you.